इसी जवाब से देश में इसी जवाब से इसी जवाब से देश में आम लोगों को यह पहली बार पता चला कि भारत सरकार की कैबिनेट, जिसके मुखिया नेहरू थे, संविधान सभा के बाहर अस्थायी रूप से जन गण मन को भारत का नेशनल एंथम बनाने का निर्णय ले चुकी थी। अब मैं आपको बोलता हूं, अपने इस जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और यह कहा कि जन गण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जन गण मन को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। नेहरू जी ने यह बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और नेशनल एंथम कहां से सीखा था कि पहले किसी का नेशनल एंथम विदेशों में स्वीकृत कराया जाए और फिर उसे देश में स्वीकार करने के लिए कहा जाए। I have Jairam Ramesh ji, please बैठिए, let him complete his speech. I have full respect for national anthem. I am talking about the procedure which was followed at that point of time, and the country should know, and the people, 1.4 billion people should know how the country was functioning and what was happening. Let him complete. 1 minute. Let him complete the speech. We will look into it. He is always telling he will substantiate his speech. We will look into it. You need not correct it. If anything is wrong, then we will look into it. We will correct it. Don't worry. Please continue. अब मैं ये कहता हूं, सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, please you continue. This is not correct. It is not correct. Constituent Assembly, in its 3-year tenure, Constituent Assembly, in its 3 years tenure, had 167 working days, but less than 9 minutes was formally dedicated to national anthem issue. Despite repeated demands for serious discussion by members like Sri Hari Vishnu Kamath, Seth Govind Das, Sri Shibban Lal Saxena, Sri B. Das and Sri Lakshmi Narayan Sahu, the debate was not allowed. मैं ये ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां भी जाने कि किस तरीके से देश में फैसले हुए। और मैं फिर पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं that I fully respect Jana Gana Mana as national anthem and dedicate my life, but how the decision was taken, अभी और सुनो, Shibban Lal Saxena formally proposed an amendment on November 15, 1948, Vande Mataram, the national anthem, and include it in the second schedule of the Constitution. इसको रिजेक्ट कर दिया गया और उस समय ये प्रश्न खड़े होने लगे कि क्या जो हमारी प्रोसेस है, जो हमने नेशनल फ्लैग के लिए कमेटी बनाई थी,
क्या उस तरीके की कमेटी अपने राष्ट्रगान के लिए बनानी आवश्यक थी कि नहीं थी, यह प्रश्न खड़े होने लगे। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आप ज्यादा जवाहरलाल नेहरू जी पर चर्चा करते हैं। असम के गवर्नर श्री प्रकाश जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी। माय डियर प्रकाश, थैंक यू फॉर योर लेटर्स ऑन August 3rd and August 4th, 1949 about the national song. I think we should wait now for the decision of the Constituent Assembly, which cannot long be delayed. For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as national anthem. Yours most affectionate, Jawaharlal. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 जून 1948 को लिखी चिट्ठी में फिर से नेहरू जी ने यह साफ कर दिया कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम के योग्य नहीं मानते। उनके शब्द थे, हाँ मैं पर्सनली quote, personally, I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem. He is only quoting now. Baitiye, Jairam ji, please baitiye. National anthem, chiefly because of its tune, which does not suit to the orchestral and band rendering. नेहरू जी ने अपने विचार वो क्या कहा? It was, quote, it was thought by some people that Vande Mataram tune, with all its attraction and historical background, was not easily suitable for orchestras in foreign countries, and there was not enough movement in it. मैं अब एक और बात कहना चाहता हूं। वंदे मातरम के बारे में जब चर्चा होती है तो मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ सेशन में 15 अक्टूबर 1937, 15 अक्टूबर को फतवा पास किया अगेंस्ट वंदे मातरम। जवाहरलाल नेहरू को इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग इट, नेहरू जी इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू वंदे मातरम और 5 दिन के अंदर, देखिए मैं जो तुष्टीकरण की बात बोलता हूं ना, इसकी शुरुआत और इसकी नींव उसी समय रख दी गई थी, और 20 अक्टूबर को Nehru wrote a letter to Subhash Chandra Bose and confessed that the background of Vande Mataram in the novel Anand Math might irritate Muslims. CWC मीटिंग में कांग्रेस ने बंगाल की मीटिंग में वंदे मातरम पर समीक्षा की और समीक्षा में आपने जिस तरीके की परिस्थिति रही वो आप सबके सामने है।
कि वंदे मातरम को आपने न वो स्थान दिया और न ही वो सम्मान दिया, यह बात हमको स्पष्ट होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं। आप देखिए 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, आपने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया। इस एक्ट के तहत पेनाल्टी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर फिर से आपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया। देयर इज नो पनिशमेंट, सभापति जी, अंडर द एक्ट देयर इज नो पनिशमेंट इफ यू डिसरिस्पेक्ट और इफ यू डू नॉट सिंग नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हम इनसे बात कर रहे हैं, आप आराम करो। अब We are already running late. Ab- As a senior member, you should understand. When you are speaking, they were shouting, I controlled them. Ab- And like that, he has every right to answer in his way, na? Only 1 minute. Only one minute. Yes. क्या ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है, क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I will tell you, सब distorted- we are discussing about Vande distorted Mataram only, versions और but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं। सर, whatever you have said, और जितना भी राजस्थान और whatever you have said in your anthem, debate, इसमें क्या फर्क है वो saying बोल रहे trying to हैं, वो answer. भी नहीं Please सुन रहे take your आप। seat. Please take your seat. साहब ये नहीं, अग्रवाल जी, नहीं. Let the leader speak. बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। हम कहाँ कर रहे कभी आप अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं, और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। और मैं और एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप। Now I think you can take your seat. Let him continue. नो Please. आप Please, एक मिनट, अरे आप ठीक Please. बोल रहे हैं। जब गार्गे जी, उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है। अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता, जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता। और No, सर, I told you already. No. That is not correct. What you saying is not correct. He is quoting only from the letters of Nehruji. What I have to do with it? Please continue. सर,